بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج سے ہم ایلیمنٹری میتھمیٹکس 2 کے لیکچرز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں گے، اور اس انٹروڈکٹری لیکچر میں ہم بک کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اور پھر کورس آؤٹ لائن کیا ہے، جن کورسز کو یہ بک کور کرے گی، اور پھر کنٹینٹس آف دا بک۔ اور اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ٹیچرز پوچھتے رہتے ہیں کہ بک کہاں سے ملے گی، تو اویلیبلٹی آف بک جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایلیمنٹری میتھمیٹکس 2 سیکنڈ ایڈیشن اور بی ایس 4 ایئرس کے لیے لکھی گئی بک کور سلیبس آف بی ایس باٹنی تھرڈ سیمسٹر، بی ایس کیمسٹری تھرڈ سیمسٹر، بی ایس زوالوجی تھرڈ سیمسٹر، بی ایس اکنامکس تھرڈ سیمسٹر، اور بی ایس بی بی اے سیونتھ سیمسٹر۔ یہ تو میں نے پنجاب یونیورسٹی کے افیلیٹڈ کالجز کے جو ڈسپلنس ہیں جن کے سلیبائی میتھمیٹکس کے یہ بک کور کرتی ہے وہ لکھے ہیں، لیکن باقی یونیورسٹیز میں بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مائنر کے طور پہ میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے ان تمام ڈسپلنس میں جن کا بی ایس میتھمیٹکس میجر نہیں ہے، ان میں ہم مائنر کے طور پہ یہ میتھمیٹکس کا کورس پڑھاتے ہیں۔ تو وہ اکارڈنگلی دیکھ سکتے ہیں، سلیبس میں نے تمام یونیورسٹیز کا کور کیا ہوا ہے اس میں، تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن سماسٹر میں کن کورسز کے انڈر یہ پڑھایا جاتا ہے۔ Elementary Mathematics 2 second edition for BS 4 years according to new syllabi approved by the University of Punjab, Government College University Lahore, Government College University Lahore, Cadet College UET, UCP International Islamic Universities Islamabad, Peshawar University, University of AJK, Lahore College University for Women, FC College University of Lahore, ComSet, FAST, GCU Faisalabad, Global Institute, Global Institute Lahore, UMT University of Sargodha, بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، قائدر یونیورسٹی اسلام آباد، یونیورسٹی آف گجرات، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ تو یہ تمام یونیورسٹیز کے کورسز کو کور کرتی ہے جس میں میتھمیٹکس مائنر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ کاپی رائٹ، اب یہ کاپی رائٹ ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اکثر بچے جو ہیں اور اساتذہ بھی وہ اس کی پی ڈی ایف فائل کتابوں کی مانگتے ہیں، تو یہ گزارش کرنی ہے کہ پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ کاپی رائٹ کے اگینسٹ ہے، وہ دیٹ از انلیگل پریکٹس، اور پبلشر نے چونکہ بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اور پبلشر جو ہے اس نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ لیگل ایکشن بھی لے سکتا ہے۔ 2011 اور 2017 میں چونکہ بک کا فرسٹ ایڈیشن آیا تھا اور 2017 میں اس کا سیکنڈ ایڈیشن آیا، تو دیز ایڈیشنز آر کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ بائی پبلشر، تو اس لیے میکنگ پی ڈی ایف فائل ایون فوٹو کاپی کی بھی وہ اجازت نہیں دے، تو پی ڈی ایف فائل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ ذرا بچوں کو، اساتذہ کو بھی ذرا تھوڑا سا بتانا تھا کہ یہ ایک انلیگل پریکٹس ہے، تو اس کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے، تاکہ پبلشر کو جو ہے وہ اس کی جو اس نے اتنی زیادہ کاسٹ خرچ کی ہوتی ہے پبلش کرنے میں بک، اس کا نقصان نہ ہو۔ ٹائٹل ایلیمنٹری میتھمیٹکس 2، آتھر محمد ظاہر رفیق بھٹی، یہ میرا کمپلیٹ نام میرا ہے محمد ظاہر رفیق بھٹی۔ 1991 میں جب میری میٹرکس بیسز پہلی کتاب پرنٹ ہوئی تھی تو اس میں ایبریویشن استعمال کر لی گئی تھی زیڈ آر بھٹی، تو وہ آج تک پھر وہ زیڈ آر بھٹی ہی چل رہا ہے۔ ویسے میرا نام جو ہے محمد ظاہر رفیق بھٹی ہے۔ فرسٹ ایڈیشن ستمبر 2011 اینڈ سیکنڈ ایڈیشن جنوری 2017۔ پبلشر علمی کتاب خانہ، کویز اسٹیٹ اردو بازار لاہور، اور یہ پرنٹر جہاں سے یہ پرنٹ ہوئی تھی۔ اب چلتے ہیں جی ہم کورس آؤٹ لائن کی طرف، جو کہ پنجاب یونیورسٹی بی ایس کے لیے ہے، جو افیلیٹڈ کالجز کے لیے کورس آؤٹ لائن پنجاب یونیورسٹی نے دی ہے۔ کورس کوڈ ہے میتھ 211، اور کورس ٹائٹل جو ہے وہ ایلیمنٹری میتھمیٹکس 2 کیلکولس، کریڈٹ آرس 3 سیمسٹر تھرڈ، اور جو ڈسپلنس ہیں ان میں جیسے میں نے بتایا باٹنی، کیمسٹری، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، زوالوجی، اور بی بی اے بھی شامل ہے، لیکن بی بی اے کا 7th سیمسٹر ہے۔ اسپیسیفک آبجیکٹیوز آف دا کورس کے مخصوص مقاصد کیا ہیں؟ To prepare the students not majoring in mathematics with the essential tools of calculus to apply the concepts and techniques in their respective disciplines۔ یہ ایک میجر آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو میتھمیٹکس کو جن کا میجر ڈسپلن میتھمیٹکس نہیں ہے، جیسے بھی آپ نے دیکھا کیمسٹری، زوالوجی،
पॉलिटिकल साइंस या कुछ और डिसिप्लिन हैं जिनका मैथमेटिक्स मेजर नहीं है, उनको मैथमेटिक्स पढ़ाना और फिर मैथमेटिक्स को अप्लाई कराना उनके डिसिप्लिन में। मैथमेटिक्स का वो इस्तेमाल जो उनके डिसिप्लिन में होता है वो कराना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथमेटिक्स पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका अपने डिसिप्लिन में इस्तेमाल कैसे करेंगे, केमिस्ट्री में कैसे करेंगे, ज़ूलॉजी में कैसे करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में कैसे करेंगे, ये मैथमेटिक्स का इस्तेमाल जो है वो सिखाना है। लेकिन ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल सीखने से पहले वो चीज़ आती होगी तो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप मोटर बाइक पे बाहर से कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ लाना चाहते हैं तो मोटर बाइक चलानी पहले आनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर आप उसको यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। सिमिलरली आपका मैथमेटिक्स जितना आपको रिक्वायर्ड है, उसकी कैलकुलेशन, उसकी वर्किंग, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप उनको फिर इस्तेमाल की तरफ आप आ सकें। तो ये तो था मेजर हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स जो था वो हैं कोर्स आउटलाइन के ऑब्जेक्टिव्स। अब कोर्स आउटलाइन क्या है? प्रिलिमिनरीज में सबसे पहले है रियल नंबर लाइन, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, इनइक्वालिटीज। और सेकंड इसका है टॉपिक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसमें इसमें लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस फंक्शंस डिस्कस करते हैं। और फिर थर्डली है डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशंस। और डेरिवेटिव में क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस और डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रल, टेक्निक्स ऑफ evaluating indefinite integrals, integration by substitution, integration by parts, change of variables in indefinite integrals। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोर्स कंटेंट्स जो हैं। ये कोर्स कंटेंट्स हमने देख लिए कोर्स आउटलाइन के। अब हम देखना चाह रहे हैं कि बुक के कंटेंट्स क्या हैं। चैप्टर 1 का टाइटल है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, और उसका जो उसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेक्शन में रियल नंबर लाइन जो है वो डिस्कस करेंगे, सेकंड सेक्शन में डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, और थर्ड सेक्शन में आप इसका ग्राफ्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करते हैं। और बुक का सेकंड चैप्टर जो है इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, उसके फर्स्ट सेक्शन में इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज डिस्कस की हुई हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज सेकंड सेक्शन में, और थर्ड सेक्शन में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सिमिलरली फ्रैक्शनल एंड एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज आर डिस्कस्ड इन फोर्थ सेक्शन ऑफ द सेकंड चैप्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, जो कि आपके अपने डिसिप्लिन में इनइक्वालिटीज का क्या इस्तेमाल है, वो सेक्शन 5 में डिस्कस हुआ है। इसी तरह थर्ड चैप्टर जो है वो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का है। उसमें लिमिट ऑफ ए फंक्शन फर्स्ट सेक्शन में, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स सेकंड सेक्शन में, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स थर्ड सेक्शन में, लिमिट्स एट इन्फिनिटी फोर्थ सेक्शन में, कंटिन्यूटी इन द फिफ्थ सेक्शन, और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सिक्स सेक्शन में डिस्कस की हुई है। और इसका सेकंड लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स, जिसमें आप फर्स्ट सेक्शन में इंट्रोडक्शन देखते हैं, सेकंड सेक्शन में डिफरेंशिएबल फंक्शंस, थर्ड सेक्शन में डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फोर्थ सेक्शन में, और फिफ्थ सेक्शन जो है उसमें हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि चैप्टर नंबर 4 की एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस इन द अदर डिसिप्लिन्स, वो हम देखेंगे यहाँ पे। फाइनली इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, इंटीग्रेशन का, बेसिक इंटीग्रल फार्मूलाज। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन से ये भी देखेंगे हम कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, और डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस से जो फार्मूले डेवलप होते हैं इंटीग्रेशन के, वो डिस्कस किए हुए हैं सेक्शन नंबर 5.1 में। और ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें फार्मूले जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद भी करना होगा और उसका लॉजिकली भी देखना पड़ेगा कि कैसे ये डेवलप हो गया। और फिर जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स आते हैं तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वो डिस्कस की हुई है सेक्शन नंबर 2 में। इसी तरह थर्ड सेक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट डिस्कस की है, और फोर्थ में इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस, और डेफिनेट इंटीग्रल्स पांचवें चैप्टर में लास्टली हमने इसको लास्ट सेक्शन में इसको पांचवें सेक्शन में डिस्कस किया है, बल्कि लास्ट सेक्शन में आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। पांचवें सेक्शन में आपने डिस्कस किया है डेफिनेट इंटीग्रल, और फिर फाइनली सिक्स सेक्शन में हम देखेंगे इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अक्सर स्टूडेंट्स भी और कुछ मेरे कोलीग्स भी पूछते रहते हैं कि
बुक बच्चों को बुक कहाँ से मिलेगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ बुक में जो जो सबसे पहला काम है वो तो ये है कि आपके जो भी जिस शहर में भी आप रहते हैं, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, वहाँ जो अच्छी बुक शॉप्स हैं उनमें ये किताबें अवेलेबल हैं। और वो अगर उनको किसी वक्त ना भी हो तो उनको आप पब्लिशर का और ऑथर का नाम बता के रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फिर 1-2 दिनों में आपको मंगवा देते हैं। अदरवाइज़ आप इल्मी किताब खाना की वेबसाइट पे चले जाएँ और वहाँ अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन परचेज़ का। और तीसरा एक और भी मेथड है कि आप ये जो ऐड दी हुई है इल्मी बुक हाउस की, इल्मी होम डिलीवरी में इन्होंने ऐड दी हुई है, इसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको फ़ोन करके अपना ऑर्डर प्लेस किया करवाया जा सकता है। तो जो भी मेथड आपको आसान लगे तो वो आप यूज़ करके और ये मैं आपको फिर बताऊँ कि जो हम बड़े शॉर्टकट वे से पढ़ रहे हैं, उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमें जो है आगे कॉम्पिटिशन के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लिहाज़ा बुक को हमेशा थॉरोली पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें। होपफुली ये बुक, कोर्स आउटलाइन और कुछ चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और इंशाल्लाह अब हम इसके लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि आप अपने कमेंट्स से लेक्चर्स को किस तरह से आप चाह रहे हैं कि किस तरह से अपलोड किया जाए और क्या-क्या चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएँ। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफ़िज़।